Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today, we'll have the Hindu analysis dated 20th September 2021. So, let's start today's discussion. The first article states Anti missile completes all trial. Process for issuing acceptance of necessity by Army for Helena has started, says the project director. Speaking of the background, it is stating that one of the indigenous missile made by India, that is the Helena, has completed its all functioning and its first trial has been done. So we'll study about this missile, what is Helena. From prelim point of view, it is important for us because it is made indigenously and statements can be stated that consider which statement is wrong or right about the missile Helena. Okay, so the first thing, the helicopter launched NAG anti-tank guided missile. Guided missile, we have explained or we have learned what does this indigenous guided missile means. We'll study once more. So the helicopter launched NAG anti-tank guided missile Helena, been developed indigenously, has completed all the trials and process for the issuance of acceptance by the army has started, says Sachin Sood, who is the director of this project of Helena and Dhruv Vastra. These are the two projects. This both of the missiles are made indigenously. We'll study more about both the missiles, that what are its features at DRDO, that is the Defense Research and Development, DRDO lab. So Defense Research Development Lab, Hyderabad, a laboratory for the defense research, which is one of the laboratory of DRDO simply. Okay, the launcher and the missiles are ready. Some of them are human machine interference to be realized, which are going on now. At the cost of estimation that was yet to be done, each missiles are expected to be the cost of 1 crore. Behind each missile, the estimated amount is to be considered rupees 1 crore, and around 500 missiles and 40 launchers have been required initially, he added. So just make a calculation that we need a 500 launchers and one launcher estimates for 1 crore. Once the acceptance of necessity is issued, the request for the proposal will be issued. So once it is accepted by the department, they will the proposal will be issued by them. So some firing trials would be done. Now studying about Helena. Helena is a third generation fire and forget class. So this missile is an indigenous advanced indigenous light helicopter missile, which ranges from 500 meter to 7 kilometers. This is the range of Helena. Okay, all the issues with the minimum range will be sorted because we also need a missile which can work for a short distance, because the other missiles which we have, Igni, Prithvi, Trishul, all are for the large ranges. The starting range is 500 kilometers or something. So for short distance we needed a missile, and therefore it has been made, stating that Air Force has asked for flexibility of integration of Helena, soon to be a light combat helicopter. Okay, so from brilliant point of view, one more thing we should know, as we studied about Helena, that it is an advanced light helicopter, its range is 500 to 700. We should also know about the other missile or the launcher which is named by Dhruv Vastra. ठीक है, सो इन दोनों की ही टेस्टिंग जो है पोखरण रेंज में की गई थी राजस्थान में. अब प्रॉपर अगर इसके बारे में बात करें तो आर्मी वर्जन के लिए, इंडियन आर्मी के लिए हेलिना एंड एयरफोर्स वर्जन के लिए ध्रुव शस्त्र बनाया जा रहा है. ठीक है, एंड बोथ आर दी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक. अभी मैंने जैसे यहाँ पे बोला था एंटी टैंक नैग मिसाइल सिस्टम. नैग का मतलब क्या है? नैग इज मतलब अगर कभी आपने सुना कि नैग मिसाइल्स, नैग उसको बोला जाता है विच इज़ अ थर्ड जनरेशन मिसाइल. एंड सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल. ठीक है,
जो कि हमारे इन्फेंट्री एयरबोर्न दोनों के लिए बनाई गई है। तो ये जो नाग मिसाइल्स होते हैं यूजुअली ये ऑल वेदर कंडीशंस के लिए कैपेबल होते हैं। इनका रेंज भी जो है स्टार्टिंग 500 मीटर से होता है एंड इट कैन रेंज टू 4 से लेके 7 किलोमीटर्स तक। सो नैग जो है इट इज़ अ एयरबोर्न मतलब एयर एंड लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म दोनों के लिए ये वर्क करता है। और ये बनाया किस प्रोग्राम के अंडर है, तो ये बनाया गया है हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था अग्नि 5 के बारे में, जब हम पढ़ रहे थे, जब चाइना ने क्वेश्चन किया था कि इंडिया का मिसाइल वर्किंग का क्या कर रहा है, तभी हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल का मतलब क्या है। सो दिस प्रोग्राम वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम which can enable India to have a self-efficiency. India can be self-efficient, India can be independent of making its own missile technology. जिसमें हमने देखा था 5 अलग अलग मिसाइल, हमने उसके इनिशियल्स याद किए थे। पटना का क्या था, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। उसमें से नाग जो है दैट इज दिस हेलिना एंड ध्रुवस्त्र। ठीक है, अग्नि का हमने 5 रेंजेस भी पढ़े थे, फिर पृथ्वी पढ़ा था, वापस से एक बार रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। पृथ्वी जो है इट इज़ अ शॉर्ट रेंज सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, अग्नि इज अ बैलिस्टिक मिसाइल विद डिफरेंट रेंजेस। इसमें 5 अलग अलग रेंजेस आते हैं विद द डिफरेंट किलोमीटर्स। 200 से लेके 500, 500 से लेके 700, 700 से लेके 1000, ऐसे रेंजेस तक के 5 रेंजेस है अग्नि के हमारे पास। त्रिशूल जो है, त्रिशूल इज़ अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इट इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल। नाग 3rd जनरेशन जो मिसाइल है, जो कि अभी हमने पढ़ा, दैट इज हेलिना एंड ध्रुवस्त्र। एंड द लास्ट इज आकाश विच इज़ द मिडिल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, सो ये आर्टिकल में हमें जानना था कि नाग क्या है। तो नाग आपको याद रहेगा, नाग मिसाइल का है क्या है, तो वो हमारे इंडिजीनियस गाइडेड प्रोग्राम के अंडर एक पार्ट है जो कि इंडिया ने खुद से बनाया है। अब थोड़ा सा हेलिना के बारे में पढ़ लेते हैं, हेलिना और ध्रुवस्त्र का। ये बेसिक हमारा था। हेलिना ध्रुवस्त्र का मैंने आपको बताया, हेलिना इज़ एन आर्मी वर्जन और ध्रुवस्त्र जो है वो इंडियन एयरफोर्स वर्जन बनाया गया है नाग मिसाइल सिस्टम के अंडर। ठीक है, इट कैन यूज और इट कैन बी बेनिफिशियल, इट कैन गिव इट्स फंक्शनिंग इन ऑल द क्लाइमेट्स, ऑल द टाइप ऑफ वेदर। ठीक है, हमारे DRDO के लैब में बनाया गया है इंडिजिनियसली। और इसकी फंक्शनिंग्स अगर हम देखें तो इट इज़ एंगेज टू टारगेट बोथ द डायरेक्ट हिट मोड एज वेल एज द टॉप अटैक मोड। अब आप पूछोगे टॉप अटैक और डायरेक्ट हिट क्या होता है। टॉप अटैक मिसाइल्स क्या होता है, इट रिक्वायर क्लाइंबली शार्पली आफ्टर लॉन्च एंड ट्रैवल एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड टू हिट द टारगेट एट द टॉप। तो इनिशियल कुछ डिस्टेंस के ट्रैवल करने के बाद इट टारगेट जो अगर उसका टॉप अपर पार्ट में होगा उसको हिट करेगा। वेर इज डायरेक्ट अटैक मोड का क्या होता है कि लोअर एल्टीट्यूड में अगर आपको चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल हवा में अगर कोई मिसाइल है, कोई जेट है, उसको आपको टारगेट करना है, तो टॉप अटैक मोड क्या होगा, इट विल ट्रैवल फॉर अ सम डिस्टेंस एंड देन इट विल अटैक द टॉप। ठीक है, ये टॉप अटैक हुआ। दूसरा डायरेक्ट मोड क्या है कि लैंड बेस पे कोई टारगेट है तो लैंड बेसिस पे ही लोअर एल्टीट्यूड पे इट कैन टारगेट और इट कैन स्ट्राइक दी टारगेट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी था कि एंटी मिसाइल्स में अभी कौन से 2 बने, हेलिना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि हेलिना एंड ध्रुवस्त्र वर रिसेंटली इन यूज विच मिसाइल सिस्टम में दे बोथ आर कंसिडर्ड इन अग्नि, त्रिशूल और नाग। ठीक है, देन अग्नि, त्रिशूल, नाग ये सब कौन से प्रोग्राम के अंडर आते हैं, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंदर आते हैं और इनकी फंक्शनिंग्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स NRC is final rules Assam फॉरेनर्स ट्रिब्यूल। टॉकिंग ऑफ इट्स बैकग्राउंड, हुआ क्या है, तो हमें पता है NRC जो है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन्स वाला चीज़, ये 2000 आई थिंक 18 से चल रहा है ये इशू। आसाम से स्टार्ट हुआ था। आसाम का एक ट्रिब्यूनल है, फॉरेन ट्रिब्यूनल, उन्होंने डायरेक्ट डिसीजंस देना स्टार्ट कर दिया और दे स्टार्टेड गिविंग देयर डिसीजंस और वी कैन से दे स्टार्टेड टू हैव देयर रूल्स अकॉर्डिंग टू NRC। तो उनको क्वेश्चन किया गया था बाय द आसाम गवर्नमेंट और बाय द
the Assam officials कि you can't do anything on your own. You should work according to the notifications. You should work according to the rules, we can say. So first we'll see the article में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, and then we'll go to the term of NRC because NRC is important from prelims as well as mains point of view. Okay, so while Register General of India has not yet issued about the Assam's NRC, it make it a legal document. क्योंकि जब से 2018 से जब से ये इशू चल रहा है तब से हमारे जो इंडिया के रजिस्टर जर्नल ऑफ इंडिया रजिस्टर जर्नल हैं जो कि इस सिटीजनशिप के रिलेटेड डिसीजन देंगे, उन्होंने अभी तक खुद से कोई डिसीजन या फाइनल डॉक्यूमेंट अभी तक रिलीज़ नहीं किया है. तभी भी ये जो FT करके आपने यहाँ पे देखा होगा, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो है ये कुछ कुछ केसेस में अपने तरफ से डिसीजंस दे रहे हैं NRC को लेके. सो हियरिंग अ केस अगेंस्ट बिक्रम सिंघा ऑफ जमीराला विलेज हुज नेम फिगर्ड इन NRC लिस्ट, members of FT in Karimganj town said there is no doubt that this NRC Assam published in 2019 is nothing but the final NRC. So 2019 में जो लास्ट पब्लिशिंग किया गया था उसको उन्होंने फाइनल लिस्ट लेके उसके हिसाब से वर्किंग स्टार्ट कर दी है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, नॉट राइट, बिकॉज मेन जो NRC रजिस्टर्ड जनरल है उन्होंने अभी तक फाइनल स्टेटमेंट नहीं दिया उसके अगेंस्ट. So the state government question, final tribunal orders opinion comes just after Assam's political department on September asked the FT not to pass an order and stick to the given opinion. उनको ये क्वेश्चन किया गया, उनको ये बोला गया था कि FT ऑर्डर ऑफ 1964 के तहत ही आप काम करो, आप अपने हिसाब से या वी कैन से कि जो लास्ट पब्लिकेशन है उसके हिसाब से काम मत करो. अब इसमें एक चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, अगर आप मतलब नहीं तो आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, दैट इज़ कि यहाँ पे मैंने पढ़ा फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑफ 1964, राइट. सो फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑफ 1964 का मतलब क्या, पहले वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है, तब आगे की हम आर्टिकल पढ़ेंगे. फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964. सो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट कैन क्वेश्चन दी फॉरेनर्स, और वी कैन से कि इस एक्ट के अंदर ये जो ट्रिब्यूनल फॉर्म किया गया है उनको सेंटर क्वेश्चन कर सकता है कि अबाउट इट्स वर्किंग. ठीक है. सो दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड एज फॉरेनर ऑर्डर 1964. सेंट्रल गवर्नमेंट में by order refer the question as to whether a person is not a foreigner within the meaning of foreigner act. तो ये जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्चुअल बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है कि जो फॉरेनर्स आए हैं उनको क्वेश्चन करो कि आर यू रियली फ्रॉम इंडिया, आर यू फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, वो सब चीज़ पे, ना कि आप खुद से डिसीजन देने लगो हमारे NRC के रिलेटेड. तो स्टेट ने उनको यही बोला कि आप इसके हिसाब से फंक्शनिंग करो, ना कि खुद से डिसीजंस दो. ठीक है. तो ऐसे कुछ कुछ केसेस इसमें रेफ़र किए हैं, जैसे कि 1968 में लैंड डीड्स इन द नेम ऑफ हिज ग्रैंडफादर मदन कुमार एंड प्रूफ हिज फादर सिन्हा हैड बीन एन एयरफोर्स ऑफ एम्प्लॉय. क्योंकि ये जो NRC का क्वेश्चन सबसे पहले क्यों स्टार्ट हुआ था, वन ऑफ द आर्मी पर्सन, वन ऑफ द सोल्जर्स की वोटिंग लिस्ट में उनकी नाम नहीं थी. ठीक है, आसाम में, एंड उधर से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ अबाउट द नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप. तो यहाँ पे जो हमने देखा एक पर्सन के बारे में जिसके अगेंस्ट इन्होंने डिसीजन ले लिया था, बिक्रम सिन्हा, उनका ही क्वेश्चन उन्हीं के बारे में बताया गया है. सो आसाम पुलिस बॉर्डर विंग हैड 2008 filed a case against Mr. Sinha of Jamirala village under the Pakharkandi assembly. ठीक है, इन दी करीमगंज डिस्ट्रिक्ट. द मैन मार्क्ड अ डाउटफुल वोटर रिमेन्ड अनट्रेस्ड अंटिल 28 जून एंड अपीयर्ड बिफोर द फॉरेन ट्रिब्यूनल टाउन 2 months later seeking the time of बेंगलुरु where he was working. So इनके अगेंस्ट मतलब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिस्ट में इनका नाम नहीं था, एंड देन ही was working in बैंगलोर. तो 2 महीने बाद ही came back again there. Mr. Sinha produced
before FT several documents to prove his Indian citizenship. So 2 महीने के बाद जब वो वापस आए तो फॉरेन ट्रिब्यूनल में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए कि या आई एम एन इंडियन. डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इट शोड कि 1968, ठीक है, 1968 के टाइम आसाम में उनके पास ज़मीन थी उनके ग्रैंडफादर के नाम से, मदन कुमार सिन्हा. एंड डॉक्यूमेंट्स ये भी दिखा रहा था कि इनके फादर जो थे भरत चंद्र सिन्हा, ही वॉज एन एयरफोर्स ऑफिसर जिन्होंने 29 ईयर्स एयरफोर्स में काम किया है. ठीक है, तो जो हमारे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने ये पूरा केस सुना. प्रोसिक्यूशन लॉयर argued that Mr. Sinha had no document establishing his family was living in India. तो अभी क्वेश्चन क्या हुआ कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हो वो लास्ट टू लास्ट 1968 तक है, बट हमारे पास कोई भी ऐसे आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए विच शोड कि 1966 तक आपकी फैमिली यहाँ रहती थी. बिकॉज अगर आप सिटीजनशिप एक्ट पढ़ोगे देयर आर सर्टेन प्रोसीजर विच शोज कि अगर आप इतने इस ईयर के बाद या इंडिया में हो देन ओनली यू कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. So, white paper of foreign issue published by Assam office on 20th October, which says that anyone born between 1950 to 1987 can be considered the citizen of India. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला. सो इसके लिए क्वेश्चन उठा था कि ट्रिब्यूनल्स की वर्किंग अच्छी नहीं हो रही है, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स डिसीजंस खुद से मत दो, हमारा जो लॉ है, हमारा जो एक्ट है उसके हिसाब से आप काम करो. क्योंकि आसाम का जो एक्ट है इट स्टेट्स कि 26 जनवरी 1950 एंड 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर कोई सिटीज़न इंडिया में है, अगर कोई सिटीज़न के पास डॉक्यूमेंट्स है विच शो बिटवीन द एज ऑफ दिस 2 ईयर, दैट मीन्स इट इज़ द सिटीज़न ऑफ इंडिया. सो इसके लिए ये क्वेश्चन उठा था. अब हमारे लिए और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्टोरी के थ्रू, दैट इज़ NRC, कि NRC क्या है, उसकी वर्किंग क्या है एंड सो ऑन. ठीक है, सबसे पहले NRC का नोडल एजेंसी कौन सा है अगर इंडिया के सेंट्रल पर्सपेक्टिव में बात करें तो जैसे हमने देखा रजिस्टर्ड जर्नल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, दिस आर द 2 नोडल एजेंसी, द 2 central agencies for NRC. So you can remember the registered journal and the census commission are the nodal agencies of NRC. Second चीज, what is the purpose of NRC is to separate the illegal migrant from the legitimate residents. ठीक है, तो वो आसाम की स्टेट के हो सकता है या इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है. जैसे जो इलीगल बांग्लादेशीज आ रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं म्यांमार से, जो ये सब जगह से इलीगली आ रहे हैं, उनको हम अलग कर सके फ्रॉम दी एक्चुअल लेजिटिमेट सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सो NRC के बारे में अगर हम बात करें, विल स्टडी अबाउट NRC ऑफ 1951. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 1951 एक रजिस्टर बनाया गया था अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1951. ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच विलेज शोइंग द हाउस और हाउस होल्डिंग सीरीज ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट ईच हाउस एंड द नेम्स. सो जैसे हमने नोडल बॉडी देखा, सेंसस भी, इसमें सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया भी आता है. तो 1951 में सेंसस कमीशन के हिसाब से एक ये बॉडी बनाई गई थी रजिस्टर्ड सिटीजन्स 1951, जिसके तहत हर विलेज में एक आदमी अगर पेपर दिखा रहा है कि ये घर मेरे नाम पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, तो उसका मतलब होगा कि दैट पर्सन इज प्रॉपर सिटीजन ऑफ दैट एरिया, प्रॉपर पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम दैट विलेज. सो इसका जो पब्लिशिंग था वो एक टाइम पे किया था, दैट वाज 1951 में किया गया था. अब आसाम के रिलेटेड अगर हम बात करें तो आसाम में जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ जब बांग्लादेश अलग हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो 1971 के बाद से इट वाज नोटिस कि कंटिन्यूस देयर वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ माइग्रेंट्स इन इंडिया. ठीक है, प्रेजेंट डे जो बांग्लादेश है, 1971 के बाद से इट वाज नोटिस कि देयर वाज कंटिन्यूस कमिंग ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया. एंड ये एक्चुअली कंटिन्यूड फॉर मैनी अप टू 6 years तक ये डिपोर्टिंग ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स कंटिन्यू रहा. प्रॉपर अगर टाइम बताए तो 1979 से लेके 1985 तक इट वाज नोटिस कि इंडिया हैड अ लार्जर नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स और लार्जर नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स इन इंडिया कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश.
जिसके वजह से ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने एक मूवमेंट डिमांड किया था दैट यू हैव टू अपडेट द एनआरसी। 1951 के बाद आपने एनआरसी अपडेट नहीं किया है, यू हैव टू अपडेट इट सो दैट वी कैन एटलीस्ट गेट अ राइट कि या वी आर द एक्चुअल लीगल सिटीजन ऑफ द स्टेट। ठीक है, और आप 1951 के बाद जितने लोग भी आए हैं, जितने भी इलीगल लोग आए, आप उनको यहाँ से निकाल सको। सो ये क्वेश्चन किया गया था ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के तरफ से। और ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट इट वाज देयर वाज देयरफॉर अ अकॉर्ड साइन, दैट इज असम अकॉर्ड ऑफ 1985। एक अकॉर्ड साइन किया गया था जिसके तहत ये चीज़ बोला गया था कि आपको हमें हमारा हक देना पड़ेगा बिकॉज वी आर एक्चुअल इंडियंस। और ये बाहर से माइग्रेंट्स लोग आ रहे, तो कहीं ना कहीं पावर डिवीजन हम बोल सकते हैं, या फिर उनको खुद की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती होगी। क्योंकि एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे आज के टाइम पे, जो एक्चुअल इंडियंस है, जो एक्चुअल सिटीजन्स हैं, वो उनको कभी डर वर नहीं होता, तो शायद वो लोग कभी डॉक्यूमेंट्स उतना बनाते नहीं हैं। बट ये जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आए, आप उनके पास कभी भी जाओ, उनके पास एक से एक सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रहेंगे बिकॉज दे हैव अ फियर कि उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमें फियर नहीं रहता, अरे हम तो इंडियन ही, हमसे कौन पूछेगा। सो हमारे पास उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे जितने डॉक्यूमेंट्स उनके पास आपको मिल सकते हैं। सो ये क्वेश्चन उठाया गया था यूनियन की तरफ से, आप डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप ये अकॉर्ड साइन किया गया था कि आप अपडेट करो उसको, एंड प्रॉपर जितने भी इलीगल लोग हैं उनको यहाँ से निकालो। ठीक है, सो इट वॉज मेड एप्लीकेबल ओनली इन आसाम। आसाम में ही वो लाया गया था क्योंकि ये डिमांड आसाम यूनियन की तरफ से स्टार्ट हुआ था इसके बारे में। ठीक है, और फिर इसके रिलेटेड आसाम की एक एनजीओ ने भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन साइन किया था कि यू हैव टू वर्क ऑन इट। सो देयरफॉर दिसंबर 2014 में एक बेंच अपेक्स बॉडी का बैठा एंड इट ऑर्डर्ड कि एनआरसी को आप अपडेट करो। 1951 के बाद अपडेट नहीं किया गया है, तो यू अपडेट इट एंड स्टार्ट इट्स फंक्शनिंग। सो एनआरसी ऑफ 1951 को और हमारे इलेक्ट्रल रोल ऑफ 1971, ये दोनों को अपडेट करना स्टार्ट किया, लीगल सी डेटा करना स्टार्ट किया, एंड जिसकी वजह से लोगों को बोला कि शो अस अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट सो दैट वी कैन स्टेट यू आर इन सिटीजन और नॉट। ठीक है, अब इसके वजह से ये चेकिंग स्टार्ट हुई और मतलब अपडेशन करना स्टार्ट हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि एनआरसी ने एक्चुअली बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स को तो पकड़ा ही, इन जनरल हम बोल सकते हैं। इट प्रोवाइडेड अ वेरीफाइड डेटा सेट टू कैरी आउट दी डिबेट्स। ठीक है, कि ये एक्चुअल इंडियंस है कि नहीं। और अगर आप the publication of this draft NRC has actually already created a perception staying in Assam without documentation will attract you to the term of jail or deportation। ये चीज़ बोला था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो यू कैन फेस डिपोर्शन फ्रॉम आसाम और जेल। ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस क्या है, ये तो इम्पैक्ट हुआ, इट स्टार्टेड फंक्शनिंग प्रॉपरली हमारा आसाम और इलेक्ट्रल प्रोसेस 1971 1951 का फंक्शंस तो अच्छे से चालू हुआ। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले चैलेंज ये हुआ कि इट हैड अ फ्लॉड प्रोसेस। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो लोग इसमें पाए गए थे, जो लोग मतलब 2018 से जब फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ तो ये देखा गया था इलेक्ट्रल प्रोसेस में कि एक जगह उनके नाम है, एक जगह उनके नाम नहीं है। तो it even showed the we can say lacking process of the bodies of India. People who found themselves on the first list that was released on January 2018 didn't found their name in the second. ठीक है, इवन ये भी हुआ था कि वन ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट की फैमिली के नाम्स नहीं थे उसमें। सो जस्ट कंसिडर फॉर्मर प्रेसिडेंट के फैमिलीज के नाम नहीं थे, तो इट एक्चुअली शोड कि बॉडी की फंक्शनिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब हुई है। Then the parallel process of NRC, the Voter List Election Commission and the Foreigner Tribunals with the help of Assam borders led to the utter chaos। देखा, क्योंकि यहाँ पे भी अभी हमने देखा ये लोग खुद से फंक्शनिंग कर रहे हैं, वेरेस हमने देखा 1951 का एनआरसी और 1971 का ये इलेक्ट्रल प्रोसेस दोनों साथ में काम कर रहा था, तो उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था जिसकी वजह से एक chaos आ चुका था। ठीक है, इसके बाद सिंस सच नॉन सिटीजन्स कैन रिसोर्ट टू द जुडिशियल रिफॉर्म द सिटीजन क्लेम इट कैन लीड टू ओवरबर्डनिंग ऑफ जुडिशरी।
अब ऑब्वियसली अगर ये लोग सिटीजन नहीं हैं, ये लोग नॉन इंडियंस हैं, अब उनके अंदर केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, पहले से इतने केसेस भरे हैं, उसके ऊपर और बर्डन आएगा ऑफ ऑल सच माइग्रेंट्स, क्योंकि हमें भी पता है कि आसाम में कितने माइग्रेंट्स आते हैं। आसाम अगर प्रॉपरली देखा जाए तो नेबरिंग स्टेट है, इमाइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो एक हमारे लिए जुडिशरी के लिए भी एक हम बोल सकते हैं बर्डन हो सकता है। Expelling them to Bangladesh is not an option since Dhaka has never accepted them as its citizens. क्योंकि ये चीज़ एक सर्वे की गई थी, विद द सर्वे शोड कि जो ये माइग्रेंट्स आए हैं, इनसे सर्वे करने के बाद इट शोड कि उनका खुद का कंट्री उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्टेटिंग कि आप पार्टीशन के बाद वहाँ चले गए थे तो यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ बांग्लादेश, तो वो लोग जाएंगे कहाँ। इसके वजह से ये भी कहीं ना कहीं रीज़न है कि इंडिया में माइग्रेंट्स को मतलब इंडियंस या इंडियन गवर्नमेंट उनको पुश आउट करने की कोशिश नहीं करता, बिकॉज उनकी खुद की सिटीजनशिप्स नहीं है, उनको खुद का देश उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देन अपार्ट फ्रॉम डिपोर्टेशन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया था कि सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स जो एनआरसी के बारे में। नाउ ऑल्सो एनआरसी इज़ अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन, कैसे आप उसको लागू करोगे, बिकॉज इंडिया के पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, उसको उस पर्सपेक्टिव में लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट एट दिस स्टेज। जैसे कि देखा सिर्फ आसाम के स्टेट में लाने पर इतने सारे केओस हो गए थे, सो ऑल इंडिया में लाएंगे तो कितना बड़ा केओस हो सकता है। लेट्स सी आगे इसके डिसीजंस कहाँ तक जाते हैं अबाउट एनआरसी। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज हिंदी गेन्स ड्यू टू डेमोग्राफिक शिफ्ट। ठीक है, डेमोग्राफिक शिफ्ट की अगर रिलेटेड हम बात करें, इसमें एक स्कीम के बारे में बताया है, वो स्कीम के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, विच इज रिटन एज निपुण स्कीम। So first, reading about the article, Hindi speaking states make up the population for 46% of India. When the center launched Nippon scheme in 2021 July to improve the foundation literacy and numeracy, ये चीज़ देखा गया था कि निपुण स्कीम जब स्कूल्स में लागू किया गया था, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जो नदर्न इंडिया है और ये सब जगह पे निपुण स्कीम एक्चुअली बहुत लार्ज वेरिएंट पे गया एंड इट प्रूव्ड बेनिफिशियल। वेरेज जब साउथ पार्ट में ये लागू किया गया था, ये कंप्लेंट्स आए थे स्टूडेंट्स की तरफ से और ये वहाँ की फैकल्टीज तमिलनाडु और सब जगह से कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वी वर फेल्ट लाइक हम इलिटरेट है बिकॉज दे डोंट नो हिंदी। यूजुअली आप साउथ स्पीकिंग स्टेट्स में जाओगे तो दे डोंट यूज़ हिंदी एज द लैंग्वेज, और दे यूज़ देयर मदर टंग और एज इंग्लिश, यही दो लैंग्वेजेस वो लोग यूज़ करते हैं। सो ये उनकी तरफ से एक रिव्यू आया था कि दे फेल्ट लाइक दे वर इलिटरेट बिकॉज एवरी थिंग ऑफ द प्रेजेंटेशंस एंड फाउंडेशन कोर्स वाज इन हिंदी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। देन एक आयुष मिनिस्ट्री सेक्रेटरीट का एक योगा वेबिनार हुआ था, ट्रेनिंग हुआ था, उसमें भी केरला की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उन्होंने बोला था कैन यू प्लीज़ कीप द थिंग्स इन इंग्लिश फॉर अस। सो हेडलाइंस के थ्रू अगर हम माने तो हमारा एक डेटा हमें बताता है दैट इंडियन पॉपुलेशन में कितने लोग हिंदी स्पीकिंग पीपल है। दिस इंसिडेंट दैट मेड द हेडलाइन, ये एक्चुअली लास्ट ईयर हुआ था, तो 121 लैंग्वेज स्पोकन एटलीस्ट इंडिया में देखा जाता है कि 10,000 से लोग एटलीस्ट 121 लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं इंडिया में। ठीक है, बट विच ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द एजुकेशन एंड गवर्नेंस हैंडफुल ऑफ द लैंग्वेज। इतने सारे लैंग्वेज में इंडिया में आपको एजुकेशन देना इज नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हिंदी एंड इट्स वेरिएंट्स आर ओनली मेजर लैंग्वेज टू गेन द मदर टंग। ठीक है, इन लास्ट 40 years, ग्रोइंग फ्रॉम 36.99% ऑफ द पॉपुलेशन 1971 में हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग में 36.99% से अभी हम 43.63% पर आए हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। फर्टिलिटी रेट में भी अगर हम देखें, फर्टिलिटी रेट में भी ये नोटिस किया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 46% ऑफ पॉपुलेशन, वुमेन पॉपुलेशन फर्टिलिटी आर हिंदी स्पीकिंग वुमेन्स। उसके बाद माइग्रेंट्स एंड ऑल दी नंबर्स, आई एड नंबर, तो ये चीज़ बोला गया जो माइग्रेंट्स इंडिया में आए हैं दे ऑल्सो, उसमें भी बहुत लोग थे जिन्होंने हिंदी को एज देयर मदर टंग चूज़ किया। दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल स्टेट्स। Even a Hindi speaking poor illiterate
family migrant from Bihar to Kerala, they may have few children than similar family in Bihar, but they may have more than average Malayalam speaking family in Kerala. This will raise a share of Hindi speaking in the other states. क्योंकि जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग नहीं किया जाता है, by the migration only we can notice कि शायद वहाँ पे हिंदी की अवेयरनेस हो सके या शायद वो लोग हिंदी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें. अब हम जानते हैं अबाउट द स्कीम, जिसको बोला जाता है निपुण भारत स्कीम और निपुण भारत मिशन भी बोल सकते हो आप. निपुण भारत मिशन जो है जुलाई 2001 में आया था. ठीक है, ये जो निपुण अगर हम बोलते हैं इसका मतलब क्या है, सो इट इज़ द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर एब्रिविएशन है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये स्कीम लाया गया है और ये स्कीम का एम क्या है, टू कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 9 years. ठीक है, अब ये जो है ये हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया था उसके अंडर इसको ऐड किया है. ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये स्कीम के बारे में बोला गया था. द पॉलिसी एम्स टू पेव द वे ऑफ हायर एजुकेशन, ये लोगों को मिल सके. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए, सबसे लास्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा 1986 के था. उसके बाद अप्रॉक्सली 34 ईयर के बाद हमारा नेक्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लाया 2020 में. सो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ थोड़ा जानना ज़रूरी था कि लास्ट कौन से ईयर में आया था. ठीक है, सो निपुण स्कीम जो है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स हैं इंडिया में, एक 5 टायर मैकेनिज्म है नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक स्कूल्स में. ठीक है, सभी एजेस पे, और इट फोकसेस ऑन द एज ऑफ 3 to 9. तो इट इज़ सपोर्टेड बाय द स्कीम जिसका नाम है समग्र शिक्षा. समग्र शिक्षा के बारे में हमने देखा था कि टू प्रोवाइड दी एजुकेशन हॉस्टिलिटी जो ये स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. ये थोड़ी कुछ चीज़ें जाननी थी निपुण स्कीम के बारे में. इट एक्चुअली शोड कि इंडिया में हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन का ग्रोथ है और हिंदी स्पीकिंग मदर टंग जो है वो देयर इज़ एन इंक्रीज. सो डेमोग्राफिकली देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम दी सेंसस जो लास्ट किया गया था. अभी नेक्स्ट सेंसस 2021 में होना चाहिए बट पैंडमिक की वजह से अब तक हुआ नहीं है. लेट्स सी अभी जो आएगा उसमें क्या चेंजेस दिखेगा when it comes to Hindi gains or the Hindi speaking language in the people of India. We move to the last article. The last article states that empathy through education. Empathy through education की background की अगर हम बात करें तो this is also related to the new education policy. New education policy जो लाया गया था उसमें एक चीज़ ऐड किया गया था, that was the one thing which is we call it as the which we call as social emotional policy. ठीक है, सोशल इमोशन पॉलिसी. अभी क्वेश्चन उठा था कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सोशल इमोशनल पॉलिसी ऐड किया है, इज इट अ ब्लफ, इसकी कोई ज़रूरत है भी कि नहीं. ठीक है, सो सोशल एंड एजुकेशनल लर्निंग पॉलिसी मतलब वही लर्निंग social and educational or emotional learning is not a bluff, it is an important goal of education. So सबसे पहले the Indian National Education Policy of 2020 mention about the social emotional learning as an important factor of education. It is the important process through which एक बच्चा actually सिर्फ socially नहीं but emotionally भी mature होता है और it actually feels the meaning of empathy, not having sympathy but actually having empathy. तो सबसे पहले हम जानेंगे what is SEL, that is social emotional learning. It is a foundation for human development. Why? Because आप एक healthy relation develop करते हो किसी भी institute के साथ on social as well as emotional basis. You actually learn to solve the problem on your own. It is actually bringing a level of development and maturation in your personality. So the key element of SEL is cultivating empathy and theory of mind.
एम्पैथी की मतलब अगर हम देखें पहले, एम्पैथी का सिंपल मतलब है कि आप उनके लिए बुरा नहीं मानते, बट आप उनके जगह पर रहकर सोचते हो कि वो पर्सन किस किस चीज़ से गुजरा होगा। ठीक है। सो एम्पैथी इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनज इमोशन एंड टू बी अवेयर दैट व्हाट दे माइट बी फीलिंग। ठीक है। और दूसरा जो थियोरी ऑफ माइंड बोला, थियोरी ऑफ माइंड क्या है? टू अंडरस्टैंड अदर्स इंटेंशन, उनका नॉलेज, उनका बिलीफ, किस वे में वो थिंक करते हैं, दैट इज द थियोरी ऑफ माइंड। सो SEL जो है, इट इज़ नॉट अ ब्लफ, इट इज़ नॉट अ वेस्ट, बिकॉज ये चीज़ साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली भी माना जाता है कि व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन ब्रेन सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन सिस्टम में हमारा जो भी फंक्शंस होता है दैट इज़ बाय द मोटर सिस्टम और द बिहेवियर पैटर्न। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर पैटर्न, जैसे कि हमारा मोटर सिस्टम अगर हम बात करें तो वो हमें बोलता है कि हमें भूख लगी तो हम खाएंगे, हमें प्यास लगी तो हम पानी पिएंगे, राइट। तो ऐसे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट है विच एक्चुअली वर्क्स ऑन दी इमोशनल बेसिस। अगर प्रॉपरली अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा एम्बलीगैडा है, देन फ्रंटल्स है, देन आप फ्रंटल कॉर्टेक्स ले सकते हो, सुपीरियर फ्रंटल टेम्पोरल ले सकते हो। ये सारे ही जो ब्रेन के पार्ट है, इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द कॉग्निटिव मैकेनिज्म, कि हमारा ब्रेन क्या सोच रहा है। ये सब के फंक्शनिंग की वजह से हमें भूख लगती है तो हम खाते हैं, चलते हैं, जो भी मोटर स्किल्स करते हैं। सो हमारे साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी के हिसाब से भी इमोशनल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट्स इन दी लेवल ऑफ एजुकेशन। एंड देयरफॉर अगर ये क्वेश्चन का भी आया, प्रीलिम्स में भी आ सकता है एंड मेंस में भी आ सकता है कि SEL वाज करेंटली इन न्यूज़, व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट कंसिडर्स। तो ये सब चीज़ आप लोग को जानना थोड़ा ज़रूरी है। सो आई होप सो आज का न्यूज़ आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।